Hello everyone, welcome to PATHSHALA IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Simanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in PATHSHALA IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss the third lecture of the chapter Chemical Reaction and Equations of class 10th. In all the previous lectures, we had discussed about introduction of chemical reactions and equations, characteristics of chemical reactions. So in the both previous lectures, we all discussed about these two topics, that what is chemical reaction and what is chemical equations, how do we write a chemical equation and what is the necessity of writing a chemical equation, right? And what are the characteristics of chemical reaction, how do we come to know that the reaction has been completed or is going on. तो ये सब चीज़ हम लोग previous lectures में देख चुके थे, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा वो फॉल बैक करे और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे. So in the upcoming lectures we gonna learn about balancing of chemical reactions, types of chemical reactions and effect of oxidation reaction in everyday life. So moving forward, today's topic is balancing a chemical reaction. What is the need of balancing a chemical reaction? What should happen if we leave a chemical reaction unbalanced? So according to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. तो जो conservation of mass का law है वो हमें क्या कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed, यानी mass को हम खुद से create ना कर सकते और ना ही हम खुद से उसे destroy कर सकते हैं. यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में उसका मास ना तो कहीं क्रिएट होगा और ना ही कहीं डिस्ट्रॉय होगा, यानी जो इनिशियल मास था वो एज इक्वल एज रह जाएगा फाइनल मास के. फिर क्या बोला, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड. तो कोई भी एटम हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही किसी एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान. यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस हो रहा होगा तो उसके बीच में ना तो किसी मास का लॉस होगा और ना ही कोई नया मास बनेगा, एज वेल एज ना तो कोई नया एटम कहीं से आएगा और ना ही कोई एटम उस केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय होगा. दैट मीन्स देयर मस्ट बी इक्वल नंबर्स ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड. यानी प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों में जो एटम्स और एलिमेंट्स थे उन दोनों का नंबर हमेशा सेम रहेगा. द नेक्स्ट इज, इन अदर वर्ड, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट formed in a chemical reaction is equal to the total mass of reactant participating in a chemical reaction. किसी chemical reaction के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उस प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा रिएक्टेंट के टोटल मास के. समझ में आ रहा कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो उस रिएक्शन के दौरान ना तो किसी मास का और ना ही किसी एटम का लॉस होगा और ना ही कोई मास और कोई नया एटम उस केमिकल रिएक्शन के दौरान बनेगा. इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल मास था ओवरऑल एलिमेंट्स का और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा उस दोनों का मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यही क्या कहता है हमको, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी destroyed. So do we get idea that what is the need of balancing a chemical reaction? To maintain the law of conservation of mass, we balance chemical reaction to maintain the law of conservation of mass. If we do not balance the chemical reaction, then the mass of reactant which should not be equal to the mass of product. Got my point? So the next is balance the chemical equations. The chemical equation in which the number of atom of each element in the reactant side is equal to the product side is called a balanced chemical reaction. तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर ऑफ एटम मौजूद होगा, यानी उस ओवरऑल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पार्ट ले रहे होंगे, जो भी रिएक्टेंट होंगे उस रिएक्शन के, उसमें जितना नंबर ऑफ एटम होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसके नंबर ऑफ एटम्स के. दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. So there is need of balancing chemical equation, and when number of atom in reactant become equal to the number of reactant in product, then that equation is known as balanced chemical equation, right? So moving forward, our next topic is steps to balance a chemical equation. Steps to balance a chemical equation. The first step is write down the chemical reaction in the form of word equation, keeping the reactant on the left side and product on the right side. तो सबसे पहले जो भी केमिकल रिएक्शन होता है जो वर्ड फॉर्म में होता है उसको हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें जो अपने रिएक्टेंट होंगे उसको अपन लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो अपने प्रोडक्ट होंगे उसको अपन राइट साइड में लिखेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूले बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स. डू नॉट चेंज द फॉर्मूला टू बैलेंस द इक्वेशन.
so that the number of atom of each element is same on each side of the chemical equation. तो किसी chemical reaction को balance करने के लिए अगर initially वो unbalanced है, that means number of atom in the reactant side is not equal to number of atoms in the product side. So to balance a chemical reaction, we must multiply the symbol and formulae by smallest possible figures. यानी कि किसी chemical equation को balance करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो सिम्बल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स से वो मिलकर रिएक्शन बन रहा होता है, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम किसी भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डू नॉट चेंज द फॉर्मूले टू बैलेंस द इक्वेशन. हमने क्या करना है, जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होंगे, मान लो किसी रिएक्टेंट में एलिमेंट्स ए है और ये ए प्लस बी मिलकर बनाया सी प्लस डी, तो हम इस A और B या C या D इन चारों में से किसी के भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, यानी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, बट यस वी विल मल्टीप्लाई अ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर टू मेक इट बैलेंस्ड, राइट. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन सबों के जो एलिमेंट्स होंगे या फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स में किसी स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर सकते हैं, बट उसके कन्फिग्रेशन को चेंज नहीं कर सकते, यानी उसके फॉर्मूले को अपन चेंज नहीं कर सकते. और ऐसा करने से क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन ईच साइड्स, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में कैसे हो जाएंगे, इक्वल. तो समझ में आ गया कौन कौन सा दो सा स्टेप करना है. मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बिना डीकन्फिगर किए हुए हमको किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में सेम कर देना. समझ में आ गया कैसे करना है बैलेंसिंग इक्वेशन का. सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. सो टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन वी फर्स्ट अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड टू मेक इट बैलेंस. अकॉर्डिंग टू मी, आई यूजुअली प्रोसेसेस दीज 4 steps to balance any chemical reaction. First, I balance metal, then we will balance non-metal, then oxygen, and at the last of the balancing, we will balance hydrogen. Right? So किसी भी chemical reaction को balance करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जल्दी बैलेंस हो जाएगा. So it is the best trick according to me to balance any chemical reaction. Got my point? सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी chemical reaction होगा उसके मेटल को बैलेंस करेंगे. जब मेटल बैलेंस हो जाएगा तो फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे. जब नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे तो फिर से एक बार मेटल के बैलेंसिंग को देखेंगे कि ये बिगड़ा या फिर नहीं बिगड़ा. उसके बाद अपन ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे. फिर जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो फिर से इस दोनों के बैलेंसिंग को देखेंगे कि ये बिगड़ा या फिर एज इक्वल टू इनिशियल है. फिर ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर से इनिशियली इस तीनों को फिर से देखेंगे कि ये तीनों बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड हो गया. गेट माई पॉइंट. सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज carbon in the form of gas plus oxygen in the form of gas goes to carbon monoxide in form of, sorry, it's gas, a mistake, that was, it is gas. Okay, तो reactant side में क्या क्या है अपने पास, reactant side में है कार्बन, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या बना रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने में हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखें तो किसी भी एलिमेंट का हमको स्टेट बताना बहुत जरूरी है. इससे क्या होगा, मेरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा. राइट. सो व्हेनेवर वी विल राइट एनी केमिकल इक्वेशन वी विल मेंशन द स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट. गेट माई पॉइंट. सो इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट इज कार्बन and oxygen. These two combines to make carbon monoxide. Initially in the reactant the number of atom of carbon is 1 and in the product side the number of atom in carbon is also 1. सबसे पहले स्टेप में आते हैं. तो हम लोग का पहला स्टेप क्या था, अपने को मेटल को बैलेंस करना था. तो इसमें मेटल कौन है, कार्बन. तो इधर रिएक्टेंट में भी कार्बन का संख्या कितना है, 1. तो कार्बन का संख्या हुआ 1. और प्रोडक्ट में भी कार्बन का संख्या कितना है, 1. ठीक है भाई. तो प्रोडक्ट में भी कार्बन का संख्या हुआ 1. समझ में आ गया. अब आते हैं, मेटल तो बैलेंस हो गया. अब आते हैं नॉन मेटल पे. नॉन मेटल कौन कौन सा है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2. यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2. और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1. ये तो गड़बड़ हो गया. तो हम क्या करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे. इधर 2 है, इधर 1 है. तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम इनिशियली क्या बोले थे, जैसे ही हम दूसरे को बैलेंस करेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट वाले बैलेंस पे जाएंगे और देखेंगे कि ये बैलेंस बिगड़ा या सेम है. तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया
अब क्या करेंगे, हम फिर से मेटल देखेंगे यानी कार्बन को देखेंगे। तो अब क्या देखो, यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है 1 और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो क्या करेंगे, हम फिर से रिएक्टेंट में इस कार्बन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना कार्बन हो गया, 2 इधर कार्बन 2 इधर कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। सबको समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। So in reactant there are two elements. The first one is hydrogen, the second one is oxygen, and in product there we will obtain a water. तो यहाँ देखो जो हम केमिकल इक्वेशन लिखे हैं उस केमिकल इक्वेशन में हमने सारे एलिमेंट्स का स्टेट ही बताया है। इससे क्या होता है, अभी जस्ट हम बोले, इससे क्या होगा, हमारा केमिकल इक्वेशन बहुत ही एफिशिएंट लगेगा यानी बहुत ही पावरफुल दिखेगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। सॉरी, देयर इज नो मेटल इन दिस इक्वेशन, सो फॉरगेट द मेटल वन। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन मेटल। अब किसको करेंगे, हम अपन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो इधर देखो हाइड्रोजन का संख्या कितना है 2 और इधर भी हाइड्रोजन का संख्या 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में हाइड्रोजन का संख्या कितना है 2-2। ठीक है, अब आते हैं फिर ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, ऑक्सीजन है भैया तुमको रिएक्टेंट में 2। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, हमें इसको बैलेंस करना है क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, राइट। सो इनिशियली तो ऑक्सीजन का संख्या कितना था 2 और इधर कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट डिजिट से पहले देखना है। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 4। फिर से आते हैं रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का संख्या 2 लेकिन हाइड्रोजन का संख्या सिर्फ 2 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये कितना हो गया 4 4 2 और 2। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया पक्का। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज Na in form of solid plus chlorine gas reacts together to form sodium chloride solid, that is salt. ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। So let's move on our first step. Our first step was balancing a metal. So the metal is sodium and here it is also sodium. तो रिएक्टेंट में सोडियम कितना है 1 और प्रोडक्ट में भी कितना है 1। तो ये तो बैलेंस्ड है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कितना है, क्लोरीन 2 और प्रोडक्ट में 1। तो क्लोरीन रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में 1। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो इधर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 और रिएक्टेंट में क्लोरीन 2। ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन हम फिर बता रहे हैं जब नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे तो वापस से अपन मेटल को चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या फिर बिगड़ गया। तो अब देखो क्या हुआ, इधर मेटल का संख्या 2 हो गया और इधर मेटल 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और है वी गेट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। गेट माय पॉइंट, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज CH4 in the form of gas reactant with oxygen to form carbon dioxide and water. So in the reactant side there is methane and oxygen. They combine together and form carbon dioxide and water. तो चलते हैं अपने पहले स्टेट पे। तो मेरा पहला स्टेट क्या था, बैलेंसिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन जो मेटल है उसको बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, कार्बन है 1 और प्रोडक्ट साइड में भी है 1। ये बैलेंस है। अब चलते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल सबसे पहले कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 4, राइट। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2। तो वी विल मल्टीप्लाई 2 टू गेट 4। ओके, so now in product side their number of hydrogen atom is 4 as same as the number of atoms in the reactant, that is 4. So moving forward, the next one is hydrogen. The number of hydrogen in reactant side is 2 but number of oxygen atom in product side is 2 plus 2, that is 4. So in the reactant side we will multiply 2 to get 4. So now carbon, hydrogen, oxygen all is balanced. So this equation becomes balanced. समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं बैलेंसिंग, पक्का। एक बार ओवरव्यू देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो वापस से मेटल को चेक करेंगे ये बैलेंस हुआ या नहीं। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो फिर से दोनों को चेक करेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं। सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे मेटल को बैलेंस किए थे, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करा, फिर क्या करा हाइड्रोजन को बैलेंस करा। समझ में आ रहा सबको,
पक्का कैसे करते हैं बैलेंसिंग हो जाएगा. दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल. You all have to balance all these 5 reactions and comment the answer in the comment box. तुम लोग क्या करो, इस पांचों को बैलेंस करो और इस सबका बैलेंस इक्वेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं चेक कर दूंगा. समझ में आ रहा सबको? पक्का. और हाँ, जब भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होगे तो सबका नाम जरूर लिखना कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है. सबका नाम लिख के फिर तुमको मैसेज करना है, ऐसे नहीं कि सीधे बैलेंस कर दिए. समझ में आ रहा सबको? पक्का. तो ये रहा तुम लोग का होमवर्क. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इन विच द फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक.